Good evening, everyone. Am I audible to everybody, बच्चों? Yes, ma'am. Okay, okay. Why so less people today? बाकी के लोग कहाँ हैं? Please tell them to join fast. I will wait for 2 minutes. Next week I will finish this chapter, हाँ बच्चों? इंशाल्लाह हो जाएगा next week तक. नहीं. To start preparing for your test next week. मतलब ये संडे बोला मैंने तुम लोगों को टेस्ट नहीं ना? Okay, next Sunday. Next Sunday will be your test. Not this Sunday. Next Sunday. ये चैप्टर का हेलो अरेंज का नॉट हेलो अरेंज हेलोजन डेरिवेटिव्स. अब मैं तुम लोग को मेरे को समझ एक काम करो तुम लोग सब लोग है ना मुझे अपना एड्रेस भेज दो. मैं ना इनविटेशन भेजती हूँ तो प्लीज कैमरा ऑन रखिए. मेहरबानी फरमाइए. बराए करम उपकार करके प्लीज कैमरा ऑन रखिए. अपना थोबड़ा दिखाओ सब लोग सड़ा हुआ. दे दो मुझे सब लोग एड्रेस दे दो ठीक है. रोज मैं मेल करूंगी मस्त पिक्चर के साथ. इनविटेशन फॉर जूम मीटिंग. जो लोग कैमरा ऑन नहीं करते ना वो लोग नहाते नहीं है. आंघोळ घेत नाही म्हणून कॅमेरा ऑन करत नाही. है ना साक्षी? हाँ अभी बराबर सबने कैमरा ऑन किया मतलब सब लोग नहा के आए. सही है. ये सिद्धेश सोहम कभी जिंदगी में नहीं नहाते ऐसे लगते हैं. कभी भी कैमरा ऑन नहीं रखते. मैम मैं मैसेज कर रहा था दोस्त को आने के लिए इसलिए शायद बंद हो गया होगा. ओके ओके. हाँ तू बेचारा रखता है. और ये आ गई मेरी नानी माँ प्रांजल. प्रांजलचं नाव मी आता नानी माँ सेव्ह करणार आहे. एवढी डांटते मला. पीछे करो आगे करो ऊपर करो नीचे करो कैमरा वापस पेज दिखाओ. बाप रे. आ गए सब लोग. गौरी गेली कुठे? किडनॅप झाली की काय? हा ओके ओके. मला वाटलं कुठे पडली बिडली खाली. ओके. So yesterday I have told you we will do elimination reaction versus substitution reaction. Okay. Now you all must be knowing what is elimination. Elimination मतलब अगर मेरे पास Rx है. एक मिनट दूसरा पेन लेती हूँ. ये एकदम चल नहीं रहा. अच्छा. Elimination means if I am having over here Rx, right? So elimination का मतलब है ये यहाँ से पूरी तरह से निकल जाएगा. They will be removed. And what is substitution? If you are having Rx, you are going to remove this. In place of this, you are going to add another nucleophile. That is called as substitution. Correct? So first differentiation is
tertiary alkyl halide. Okay, tertiary alkyl halide undergoes elimination reaction very easily. They undergo elimination as well as substitution. दोनों में जाता है वो. एक मिनट. Okay, they will prefer to undergo into the elimination reaction. Tertiary alkyl halide prefers to undergo into the elimination reaction. The tertiary alkyl halide prefers elimination reaction. Okay, here you are going to write down primary alkyl halide prefers substitution reaction. First point is very clear. मतलब इसका order of reactivity क्या है? Tertiary, secondary, and then primary. Here it is primary, secondary, and tertiary. First point is very, very clear to everyone. Okay. Next is nucleophile. Okay, in this case, nucleophile should be a strong base. Okay, nucleophile should be a very strong base, and that is why it will undergo into the elimination reaction. Here, nucleophile can be a weak base also. Okay, a nucleophile can be a weak base also. Like you are using over here NaOH और KOH, यहाँ पे आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ऐसे सिंपल से बेसिस भी यूज कर सकते हो. No need to require a very strong base over here. ठीक है. Third point is here we require less polar solvent. ठीक है. And here we require more, or you can say properly, polar solvent. समझा बच्चों? Less polar solvent or more polar solvent. Here it takes place at high temperature. High temperature favors elimination reaction and low temperature जो है वो favors substitution reaction. So it is favored at low temperature. आ गया समझ में? ठीक है. If they will ask you to distinguish between elimination reaction and substitution reaction, so elimination reaction is preferred by tertiary alkyl halide. Substitution reaction is preferred by primary alkyl halide. Nucleophile should be a very strong base, and here weak base can also be act as a nucleophile. Here less polar solvent is favoring the elimination reaction, more polar solvent is favoring the substitution reaction. High temperature favors elimination, low temperature favors substitution. Clear हो गया बच्चों? Is it very, very clear to everyone? Yes ma'am, clear है. Yes. Any question? चलो heading लिखो. Distinguish between elimination reaction and substitution reaction. ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है. ठीक है. Distinguish between elimination reaction and substitution reaction. मैं अभी पहले ना elimination वाला ही पार्ट दिखाती हूँ. आप लोग कॉलम बनाओ. ठीक है. बाद में ये वाला लिखेंगे. Make 2 columns elimination. In another column write down substitution. Elimination. In another column write down substitution. बोलू first point. Okay नानी माँ. मैम. हाँ मैम एक डाउट था, थोड़ा सा पूछूं क्या? हाँ अभी बोलो ना. हाँ पूछो मैम, ना. वो जो रेसमिक मिक्सचर है ना, वो रिटेंशन और इन्वर्जन का, वो हाँ. डेक्स्ट्रोरोटेटरी और उसका सेम है क्या? मतलब yes you are absolutely right. ये वाला है ना. एक मिनट बताती हूँ. ये रहा. रेसिमिक मिक्सचर में क्या होता है, जो आपका अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इट इज लिवोरोटेटरी. राइट. सो दीज टू व्हेन दे आर कमिंग 50-50. देखो ना, अभी रिटेंशन एंड इन्वर्जन मतलब एक इधर घुमा होगा, एक इधर घुमा होगा. Right, so that is why it is called as racemic mixture. So it is absolutely correct. It is Okay, DNL ma'am, clear है. configuration. Correct. बराबर question है. Very थैंक good. यू मैम, क्लियर. Yes. चलो लिखो. Elimination reaction. बोलो. Write down. Tertiary alkyl. Elimination में लिखते जाओ पहले. हाँ, 2 लाइन, एक लाइन छोड़ देना. Tertiary alkyl halide
tertiary alkyl halide prefer to undergo elimination reaction. Tertiary alkyl halide prefer to undergo elimination reaction. देखो tertiary, secondary, primary. Next point, nucleophile should be a strong base. Nucleophile should be a strong base. Next line, third point, less polar solvent favors elimination reaction. Less polar solvent favors elimination reaction. What? Repeat. Less polar solvent favors elimination reaction. And the last point in this is elimination reaction is favored by, elimination reaction is favored at high temperature. Elimination reaction is favored at high temperature. Elimination reaction is favored at high temperature. Okay? Now I will keep my camera this side. Sentences all will be same. Only you have to change these words. Will you do that? Yes or no? Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ चलो फटाफट Ma'am, करो 5. third point repeat कीजिए ना please. Less polar solvent favors elimination reaction. Thanks. Okay, चलो लिखो फटाफट. I will give you 5 minutes. Okay, done. Just give me 2 minutes. Done, Please ma'am. write down that. Okay. 2 मिनट रुकोगे प्लीज, मैं पानी पी के आती हूँ. 2 मिनट. हाँ.
Okay. Is there any question regarding this? Now next reaction we will do here is reaction with active metals. Now first of all tell me what do you mean by active metals? Any idea? कौन से ग्रुप एलिमेंट्स को हम एक्टिव मेटल्स बोलते हैं? स्पेशली ग्रुप 1 and 2. वेरी गुड. ग्रुप 1 and 2. ठीक है, those are called as active metals. The elements which are present or the metals which are present in group 1 and 2 are called as active metals. ठीक है, इसमें आपको दो reactions पढ़ना है. First is reaction with the sodium and first is reaction with the magnesium and second one is reaction with the sodium. Okay, तो जो word synthesis हमने 11th standard में किया था वापस से है यहाँ पर. So in this first one we will study reaction with magnesium, Mg. If you remember, you have studied something called as Grignard reagent. ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या? I will take here Rx, I will take magnesium. The most important part of this reaction is dry ether, because this reaction cannot take place in the presence of water. It is highly inflammable. Okay, and reaction is very, very fast. So in order to slow down that and also to avoid the inflammation, we are going to use over here dry ether. अभी क्या करना है आपको? ये मैग्नीशियम को इन दोनों के बीच में डाल दो. ठीक है, so it is RMgX. So this is called as alkyl magnesium halide. Okay, which is also called as Grignard reagent. It is also called as Grignard reagent. इतना समझ आ गया अच्छे से? Grignard reagent, alkyl magnesium halide is also called as Grignard reagent. ठीक है, अब देखो हाँ reaction क्या होगा. I will take over here Grignard reagent which I have made here. I will treat it with CH3OH. ठीक है, अब क्या करना है आपको? This R will go and directly attached with this H. ठीक है, so it will form RH. RH का मतलब क्या है बच्चों? It is called as hydrocarbon. Yes or no? हाइड्रोकार्बन अल्काइल होता है ना. R group is called as alkyl group. मतलब उसमें एक हाइड्रोजन कम है. When you are going to add one more hydrogen, it becomes hydrocarbon. Plus, अभी इसको क्या क्या बचा है मेरे पास? Mg बचा है, X बचा है and OCH3 बचा है, right? So I will write down here Mg, ऊपर लिखो X, नीचे लिखो OCH3. हो गया. So this method is used to form the hydrocarbons. समझा? वापस से मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनो. Next is reaction with the magnesium. I will take over here alkyl halide. When alkyl halide is treated with the magnesium, it forms alkyl magnesium halide, that is Grignard reagent. Okay, Grignard reagent is used to prepare the ample of organic compounds. One of this is the preparation of hydrocarbons. ये बन गया मेरा Grignard reagent. Now I am going to treat it with the methanol, or you can use any alcohol. आपको करना क्या है? सिर्फ ये लास्ट वाले R को ये लास्ट वाले H से ज्वाइन करना है. You will get your hydrocarbon. अब बचा क्या मेरे पास? Mg, एक जगह X लिखो, एक जगह OCH3 लिखो. समझा? Is this very, very clear? Yes, Yes. or no? Yes, हाँ, ma'am. समझ गया. हाँ, अभी देखो मैं एग्जाम्पल देके समझाती हूँ. ठीक है, I will write down here CH3Br plus magnesium in presence of dry ether. क्या करूं बच्चों? इसको बीच में डाल देंगे. This is called as methyl bromide. ठीक है, this is called as methyl bromide और bromomethane. आप कुछ भी लिख सकते हो. अभी क्या करेंगे हम? मैग्नीशियम को इसके बीच में डाल दिया तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो गया. अल्काइल की जगह क्या लिखना है अभी? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो गया. अब मैं क्या करूं? I will treat this CH3MgBr with, suppose I am taking over here methanol only, CH3OH. This is your methanol. चलो क्या हो गया अभी? What it will form? I will write down over here CH3 is combining with this H. क्या बन गया? CH4 means it is Methane. giving you methane. Very good. Plus it is Mg, X and OCH3.
So here you have got over here your हाइड्रोकार्बन। आया समझ में? तो आप अगर यहाँ का चेंज करते जाओगे, ये चेंज नहीं कर सकते हो आप, ठीक है? अल्कोहल आपको मिथेनॉल ही लेना है, बट आप ये चेंज कर सकते हो ना? Yes or no? Suppose I will ask you to complete this reaction. C2, अच्छा sorry, CH3, CH2, CH2, Cl plus Mg in the presence of dry ether, you will get A. A on treatment with methanol gives you B. ठीक है, ये आपको बाद में कंप्लीट करना है, पहले लिखो, हेडिंग लिखो बच्चों। Is it very very clear, everyone? Yes, ma'am. Aditi, Yes, ma'am. Yes, Sakshi, ma'am. तन्मय, निशिल, सिद्धेश, गोम्स, गौरी, हिनल, नीति, ओमकार, आशीष। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके गुड। चलो, कुछ पूछना है तो पूछ लो अभी, श्योर ना? चलो ठीक है, राइट डाउन। रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स, reaction with active metals. Write down A, reaction with magnesium, reaction with magnesium. ठीक है? Then write down RX plus Mg, dry ether, RMgX, alkyl magnesium halide. दिख रहा है ना? I'll just hold it like this and please copy down this. Done बच्चों? Should I go to the next page? Should I go to the next page बच्चों? Okay. Done, Yes, ma'am. ma'am. यस, चलो अभी कॉपी करो फटाफट और ये वाला रिएक्शन कंप्लीट करो, ठीक है? दिख रहा है ना? अभी रिफर करके भी लिख सकते हो। चलो अभी देखो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द बाय प्रोडक्ट, इसलिए मैंने क्या लिखा, सिर्फ ए एंड बी। तो ए चाहिए एंड बी चाहिए बस, ठीक है? हो जाएगा तो मुझे बोलो।
मैम थोड़ा ऊपर। Okay, done बच्चों. I hope it is very very clear. What is the main product you are going to get over here? पहले इसका नाम बोलो. This is propyl chloride, correct? This is called as propyl chloride. यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3, CH2, CH2, MgCl. Am I right? So propyl magnesium chloride. It is propyl magnesium chloride. And when you are going to treat it with CH3OH, क्या हो जाएगा बच्चों? ये पूरा है ना आपका, ये पूरा कंपाउंड ये H के साथ जाएगा. So it will form CH3, CH2, CH3. प्रोपेन आ गया. क्लियर हो गया सबको? यस किसी को डाउट है? यस मैम, क्लियर है। मैम Anything? पहले वाला पेज। पहले वाला पेज बताओ. ये वाला हो गया सबका? ओके. प्रांजल की आत्मा साक्षी में भी घुस गई. हो गया साक्षी? Okay, okay, right, right, right. I hope this is very, very clear. Om Sai, is it very clear to you, beta? Smile करतोय. समजलं काय? हा, ठीक आहे. काय नाही समजलं की विचार हा. घाबरू नको. मी मारणार नाहीये. मारते तसं मी, पण तुला नाही मारणार. ओके? निश्चल कितना हंस रहा है. इन लोगों ने मुझे देखा नहीं है ना, ये न्यू एडमिशन वाले बच्चों ने, तो वो थोड़ा हवा में लेते होंगे मुझे, है ना अदिति? ओके, चलो हो गया. Should I proceed Miss, for the next हाँ बोलो. मिस ये MgCl OCH3 का क्या IUPAC मिलेगा? क्या क्या क्या? मिस जो बोलो वापस. बाय प्रोडक्ट बना है ना, हाँ, उसका कुछ नाम नहीं है. इट इज जस्ट एन अडक्ट. इट इज कॉल्ड एज अडक्ट. अडक्ट मतलब क्या? सबको उठा के ऐसे आजू बाजू रख दिया बस. इट इज अ यूजलेस प्रोडक्ट विच इज नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर, और कहीं पे भी वो यूज नहीं होता है. इट इज कॉल्ड एज अडक्ट. ओके, सो इसके लिए हम लोगों Yes, ने ma'am. ए और बी. ठीक है, चलो. शुड आई प्रोसीड नाउ? नेक्स्ट वी विल डू हियर reaction with sodium metal Wirth synthesis. Next is reaction with sodium metal. ठीक है? In this we will study Wirth synthesis. Do you remember something? Wirth synthesis which we have done in your 11th standard also. ठीक है? What I am going to do here, I will take Rx plus 2 molecules of Na and again XR. याद आया? 2 molecules लेते थे हम लोग. ठीक है? Then you are going to treat it in the presence of dry ether. आप क्या निकालोगे बाहर? अभी ये देखो, इसको उड़ा दिया बाहर. R और R को ज्वाइन करो. You just join this R with this R. So it is R dash R. क्या आया? Hydrocarbon. Yes or no? It will give you hydrocarbon only plus 2NaX. Is it very very clear? अभी एग्जाम में ना आपको ऐसे लिख के सजा के नहीं देने वाले कि अरे भाई ऐसा है, चलो तुम खाली एरो बनाओ, प्रोडक्ट निकालो.
ठीक है, दे विल गिव यू लाइक दिस, CH3Cl plus Na in presence of dry ether, ठीक है, in presence of dry ether। तो अभी आपको समझेगा, अरे यहाँ पे तो एक ही है, यहाँ पे तो दो दो है, कैसे करूं? तो वो अंडरस्टूड है कि ये 2 रहेगा, ठीक है। मीन्स यू आर गोइंग टू राइट डाउन ओवर हियर CH3Cl plus 2Na plus ClCH3 in presence of dry ether। हो गया। अभी यहाँ से क्या बाहर निकलेगा? NaCl, CH3 dash CH3, is it right? CH3 dash CH3 plus 2 NaCl, what is the name of this compound? It is your ethane। I hope this is very very clear। Word synthesis with the active metal, that is your sodium, correct? When you're going to use your alkyl halide, they are not going to write down your 2 times, that is your job। You have to understand that you are going to use over your 2 molecules of your alkyl halide and you are going to treat it with the sodium in the presence of dry ether। तो आपके लिए सबसे बड़ा हिंट क्या है? एक तो सोडियम और दूसरा ड्राई ईथर। सो ये बता देता है कि इट इज योर वर्ड सिंथेसिस, सो यू हैव टू ऑटोमेटिकली मेक इट 2। अंडरस्टूड दिस मच पार्ट? यस ठीक मैम। है। हाँ, अभी देखो, Yes, ma'am. आपको अगर अगर आपको याद होगा तो हमने 11th में किया था CH3Br plus C2H5Br and you are going to treat it with the sodium metal in the presence of dry ether। अभी है ना बच्चों, इसके 3 प्रोडक्ट पॉसिबल है, बताओ कैसे? एक तो मिथाइल प्लस मिथाइल हो जाएगा, देखो ना, R प्लस R हो जाता है ना, CH3 प्लस CH3 हो गया कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3NCH3, एक इथेन आएगा, C2H5 क्या आएगा? ब्यूटेन, और एक CH3NC2H5 आएगा, मतलब पेंटेन। अंडरस्टूड? हेलो हेलो हेलो, हाँ पेंटेन मैम, नहीं, सॉरी, यस। हाँ मैम। समझा ना? ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन। यस करेक्ट। एक आएगा इथेन, एक आएगा ब्यूटेन और एक आएगा प्रोपेन। एब्सोल्युटली करेक्ट। हैव यू अंडरस्टूड दिस? Yes, ma'am. ओके, सो विल यू बी एबल टू राइट डाउन दिस प्रोडक्ट बाय? खुद से लिख सकते हो आप लोग। पहले ये लिखो, रिएक्शन विद सोडियम मेटल, वर्ड्स सिंथेसिस, वर्ड्स सिंथेसिस, रिएक्शन विद सोडियम मेटल, वर्ड्स सिंथेसिस। चलो कॉपी करो फटाफट। लेट मी नो वंस यू आर डन। कॉपी डाउन दिस। अल्काइल हैलाइड, सोडियम, ये दोनों रिएक्ट करके क्या निकाला बाहर? 2NaX। अभी मुझे इसमें भी कुछ इंटरेस्ट नहीं है, आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन माय हाइड्रोकार्बन, राइट? सो आपने इसको क्या कंसिडर किया, कैसे समझा कि ये वर्ड सिंथेसिस है? क्योंकि सोडियम है एंड ड्राई ईथर है, सो इट इज अ वर्ड सिंथेसिस, राइट? सो विल गेट ओवर योर इथेन। अभी इसमें क्या, इथेन को इथेन से मीथेन, मीथेन क्या हो जाएगा? इथेन। फिर ये ब्यूटेन और एक आएगा आपको प्रोपेन। लेट मी नो वंस यू आर डन विद द राइटिंग पार्ट। तो मैं कैमरा नीचे रखती हूँ। और सभी के IUPAC नेम लिखेंगे, हाँ? मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड और क्लोरोमीथेन, ब्रोमोइथेन। और एग्जाम में कैसे आता है? कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन एंड नेम द रिएक्शन। So you have to complete it and you have to write down the name. The name of this reaction is Wirth's reaction or Wirth synthesis. WURTZ, Wirth's synthesis। हो गया लिख के? चलो कंप्लीट दिस रिएक्शन।
अगर मैं पूरा नहीं भी लिखूं तो मुझे समझेगा ना कि इट इज CH3 डैश CH3, फिर हो जाएगा C2H5 डैश C2H5। तो आप इसको अच्छे से लिखवा, C4H10 लिखो, ऐसे मत लिखना। यू राइट इट एज C4H10 क्योंकि ये फिर अनस्टेबल दिखेगा। एंड दिस यू राइट डाउन CH3 CH2 CH3। समझा? सिर्फ जोड़ नहीं देने का, अच्छे से लिखने का भी। So ethane, butane, propane. I hope everybody understood this. Yes, ma'am. Okay. Any other questions, बच्चों? Any doubts? Anything? So मैम हम पर ये पूरा एक ही क्वेश्चन है ना, तो हम उसको डिवाइड क्यों कर रहे हैं दो हिस्से में? मतलब कौन सा फाइनल question? सिर्फ वो एक ही आना चाहिए ना, ये जो अभी सॉल्व करते हैं। ये वाला 3 हाँ। आएगा ना। ये आप खुद का भी तो कपलिंग होगा ना, इट विल अंडरगो इनटू द कपलिंग रिएक्शन आल्सो। सो मिथाइल मिथाइल भी हो जाएगा, इथाइल इथाइल भी हो जाएगा, इथाइल मिथाइल भी हो जाएगा। ये समझा? पूरे इक्वेशन का वो लास्ट वाला ये बचेगा ना। ऐसा नहीं है, तीनों मिलेगा। यू विल गेट ऑल द 3 प्रोडक्ट्स एंड यू कैन सेपरेट इट बाय एडिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट। डिस्टिलेशन करके तीनों को अलग कर सकते हैं, तीनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग है। अंडरस्टूड? ओके। डन। चलो, अभी है ना एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था फिटिग। उसने क्या बोला वर्ड्स को, जब दोनों की बातचीत हो रही थी, दैट टाइम ही सेड वर्ड्स कि भाई तूने तो अल्काइल हलाइड लेके बनाया ना, आई विल प्रिपेयर इट बाय यूजिंग अराइल हलाइड। ओके, so I'll just turn the page and I will write down over here, when any aryl halide, suppose I am going to take over here chlorobenzene, ठीक है? ये फिटिग ने बोला, क्या बोला फिटिग ने? उसका नाम क्या है? फिटिग। फिटिग रिएक्शन। What Fittig said to words? He said that okay, you have made it by using alkyl halide, I will made it by using aryl halide। सोडियम ले लिया, ड्राई ईथर ले लिया, एंड ही सेड दैट ये Na इसके साथ जाएगा, ये भी 2 मॉलिक्यूल लेंगे ना, तो अपने को क्या मिलेगा पता है यहाँ पर? दिस इज कॉल्ड एज बाइफिनाइल। दिस रिंग इज कॉल्ड एज बाइफिनाइल रिंग एंड यू विल गेट ओवर हियर 2NaCl। हो गया। दिस इज कॉल्ड एज फिटिग रिएक्शन। समझा? सपोज आई एम राइटिंग ओवर हियर chloro and suppose I'm writing CH3 and I will say 2 molecules of Na in the presence of dry ether। बोलो क्या प्रोडक्ट आएगा बच्चों? ऐसा आएगा Ditoluene. ना? हाँ बराबर, ऐसे दोनों को ज्वाइंट करने का है ना। तो एक यहाँ पे रहेगा और एक यहाँ पे रहेगा। इसका नाम दूसरा है, मैं बाद में बताऊंगी। अभी खाली के लिए इतना ध्यान में रखो कैसे दोनों रिंग ज्वाइंट हो जाती है। इट इज कॉल्ड एज NaCl। समझा? Yes, ma'am. यस। ओके। इसका नाम ऐसे होता है 1,4 डैश, क्योंकि इसको आप क्या बोलोगे? 1 2 3 4 5 6। तो बाजू वाले को बोलने का 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश। तो 1,4 डैश डाइमिथाइल बाइफिनाइल। वो जाने दो, उतना जाने दो। कभी ये समझ आ गया ना कि हाउ टू जॉइन दिस? ओके, सो दिस इज फिटिग रिएक्शन। फिर ना क्या हुआ, वर्ड्स और सिंथेसिस ने बोला एक काम करते हैं, तेरा और मेरा दोनों भी मिला के ना एक अच्छा कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, सो व्हाट ही हैज डन नाउ, दे सेड आई विल टेक ओवर हियर अराइल हलाइड एंड ये फिटिग ने बोला, ठीक है, वर्ड्स ने बोला ओके आई विल आल्सो contribute my methyl bromide and we will treat this with 2 molecules or 2 atoms of sodium in the presence of dry ether। अभी क्या हो गया, ये Br ये Na सब बाहर निकल के you will get over here which compound बच्चों? You will get over here a toluene, है ना। बेंजीन किसको अटैच हो जाएगा? डायरेक्टली CH3 को। बचा तो यही है, so it will form over here your toluene plus 2 NaBr। अभी समझ आया? This is called as Würtz-Fittig reaction।
इज इट वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल? मैं क्या पकाना चाह रही हूँ आपको, आओ सॉरी बताना चाह रही हूँ आपको। Yes, अंडरस्टूड? ma'am. Yes. See, what said, okay, I will do only with alkyl halide. Fittic said, I will do with the aryl halide also. फिर दोनों ने पार्टनरशिप कर लिया और उन्होंने बोला अल्काइल हलाइड और अराइल हलाइड दोनों को मिक्स कर देते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, और यहाँ पे आप लिखोगे मिथाइल ब्रोमाइड, तो यहाँ से बी आर गया, यहाँ से बी आर गया, यहाँ से गया, तो 2 NaBr, ये जाने दो, हमको बायो प्रोडक्ट नहीं देखना है। दिस विल डायरेक्टली गो एंड कंबाइन विद दिस, तो इट विल गिव यू टोलुइन। समझ आ गया अच्छे से? तो दिस इज कॉल्ड एज वर्ट्ज-फिटिग रिएक्शन। ठीक है, वर्ट्ज सिंथेसिस, फिटिग सिंथेसिस, वर्ट्ज फिटिग सिंथेसिस। लिखो, कॉपी करो। फिटिग, FITTIG। यस मैम पिछले रिएक्शन में इथेन, ब्यूटेन और कौन सा? प्रोपेन, प्रोपेन ये रहा, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH3। ओके समीक्षा, हेलो हेलो। मैम वो कैसे आया प्रोपेन? ये देखो, ये क्या था तुम्हारे पास, CH3 CH3 एक बार ज्वाइंट हो जाएगा, C2H5 C2H5 का क्या मतलब है, 2N2, तो यू विल राइट डाउन होगा C4H10। फिर ये इसके साथ ज्वाइन होएगा ना एक बार, तो CH3 and C2H5। अभी इसको इतनी गंदी तरीके से थोड़ी लिखेंगे, जाहिलो जैसे, अच्छे से लिखेंगे ना। सो विल राइट डाउन ओवर CH3 CH2 CH3, तो ये हो गया प्रोपेन। अंडरस्टूड? पहले इन दोनों का आपस में हो गया, फिर इन दोनों का आपस में हो गया, फिर इसका और इसका हो गया। क्लियर? चलो ये कॉपी करो। फिटिग रिएक्शन, FI, एक मिनट में कैमरा ऊपर पकड़, हाँ बोलो। मिस ये वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन में जैसे हमने अभी साक्षी ने पूछा ना, उस रिएक्शन में हम डबल करते हैं, वैसे हाँ। इथेन फॉर्म हो सकता है? नहीं, यहाँ पे डबल नहीं करने का ना अपने को, क्योंकि ये इसके साथ जाएगा ना डायरेक्टली। इसमें तुमको डबल करना पड़ेगा क्योंकि एक ही दिया है, यहाँ पे आपको ऑलरेडी दो दो दिया है ना, दोनों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन कर दिया। सो ये बेंजाइल रिंग ये मिथाइल के साथ कंबाइन होके क्या बनाएगा, टोलुइन। तो यहाँ पे डबल करने की जरूरत ही नहीं है। ओके समझा? हाँ, ये देखो, ये सिर्फ अराइल हलाइड है, वर्ड्स वाला सिर्फ अल्काइल हलाइड था, पर ये दोनों है, तो ऑलरेडी यू आर प्रोवाइडेड विद द बोथ अल्काइल एज वेल एज अराइल, है ना। तो आपने क्या किया, सबको बाहर निकाल के खाली इन दोनों को ज्वाइंट कर दिया, बस। चाहिए तो ये वाला रिएक्शन मत लिखो, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो यू राइट डाउन दिस वन एंड दिस वन। तो मैंने बस ऐसे ही समझाने के लिए दिया कि ज्वाइंट कैसे करते, यू इफ यू वांट यू कैन राइट इट आल्सो, नो प्रॉब्लम, बट नहीं लिखा तो भी चलेगा। लिखो फास्ट, चलो। ऐसे इसमें एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल गिव बाइफिनाइल ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम। ठीक है, क्वेश्चन क्या था देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल गिव बाइफिनाइल ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम। और आपके ऑप्शंस क्या थे पता है, क्लोरोबेंजीन, फिर दूसरा आपका ऑप्शन था टोलुइन, थर्ड ऑप्शन था एनिलिन, और फोर्थ ऑप्शन था एसिटोफिनॉन। क्या आंसर आएगा? एसिटाफिनॉल। प्रांजल, टोलुइन। माझं डोकं फोड। टोलुइन आएगा, असं थोबाड फोडे ना आता एक एकाचं। मैम क्लोरोबेंजीन आएगा। क्लोरो ही आएगा ना, क्लोरोबेन्झीन आएगा ना, गधे लोक. एकेकाला आता धू धू धुणार आहे, एवढं शिकवलं मी आणि माझं डोकं फोडतात तुम्ही नेहमी. ये देखो, ये दुनिया से तो परे आंसर किसने किया, ये एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन कैसे होएगा, क्लोरो अराइल हलाइड के साथ ही होता है ना वो। ये अराइल हलाइड है क्या? टोलुइन इज नॉट अराइल हलाइड, इट इज मिथाइल बेंजीन। मैंने बाय प्रोडक्ट, मैंने मेन प्रोडक्ट नहीं पूछा, मैंने क्या पूछा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल गिव यू बाइफिनाइल ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम, मतलब मेरा क्वेश्चन मार्क इधर था, समझा? आई होप यू अंडरस्टूड। गड़बड़ मत करो, 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन है ये सब, नीट JEE में।
मिस नीट का पेपर पैटर्न बदल गया। हाँ क्या, देखना पड़ेगा मुझे। हाँ आज ही न्यूज में बता रहे थे। ओके मीन्स ठीक है। अभी जो 180 मार्क्स के क्वेश्चंस आते थे ना, सिर्फ उसमें हाँ 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा देने वाले हैं, ऑप्शन देने वाले हैं 5 क्वेश्चन। ओ अच्छा, ओके 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 समझा। अभी 45 मतलब मार्क्स क्वेश्चंस का उतने ही रहेंगे, खाली उसमें 5 क्वेश्चंस को ऑप्शन रहेगा। बढ़ा ओके दी, हाँ वैसे ही ओके मीन्स। ओके और गुड। अभी किसी की मतलब वो पहले दो 45 क्वेश्चंस थे, तो अभी 50 50 क्वेश्चंस 50 रहेगा। है। और हाँ मीन्स उसमें से हाँ वैसे 45। और हाँ 2 सेट रहेंगे, ए और बी। मीन्स ए में ओके 15 क्वेश्चंस रहेंगे और बी में 10 क्वेश्चंस ऐसे। अच्छा ओके गुड। You should thanks to Pranjal. She is giving so much of update. BBC World. Thank you Pranjal. Dadima. प्रांजलला लाग नाही येत मी एवढं चिडवता. काय ग प्रांजल? नहीं हो गया क्या बच्चे लोग? हो गया। ओके मीन्स वेट। मैं है ना तुम लोगों को एक छोटी चीज ग्रिग्नार्ड रीजन में बताना भूल गई। अभी बताऊं उधर जगह है। आई एम सो सॉरी। दिस इज डन। मीन्स ये वाली रिएक्शन नहीं लिखनी यस है ना, मिस। हाँ बोलो डन प्रांजल क्या मिस। हुआ? तो सेकंड वाली रिएक्शन नहीं लिखनी है ना। लिखनी है ना ये। हाँ ये नहीं लिखा तो चलेगा, ये और ये लिखा तो भी बस। हाँ ओके अभी देखो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन वाला किया ना बच्चों आप लोगों ने, किधर गया मिथेनॉल वाला। इसी के नीचे एक और था, दैट rather than methanol you can also take amine। अभी सपोज मैं अगर लिखती हूँ CH3 Mg Br plus NH2H, ये क्या है बोलो? इज इट अमोनिया? yes or no? NH3 है ना वो। दिस इज योर अमोनिया ओनली। यस मैम। so what is going to Yes, ma'am. happen? सेम होने वाला है। CH3 जाएगा ये H के साथ, so I will get over here CH4। समझा बच्चों? मेन प्रोडक्ट इज सेम, खाली आपका बाय प्रोडक्ट क्या हो जाएगा अभी? Br and NH2 हो गया। तो मतलब समझा? हम लोग को NH3 देंगे ना, NH3 देंगे, यस। ये सिर्फ मैंने तो हम लोग को समझाने के ऐसे लिए बोला। डिवाइड करना है। यस परफेक्ट, समझ गया। वो वहां पे लिख दो प्लीज, एक एक्स्ट्रा मैं भूल गई थी। यहाँ पे भी कर सकते हो। मेथेनॉल की जगह पर अगर मैंने आपको NH3 दिया होता तो भी मेन प्रोडक्ट तो आपका यही आता, खाली आप अडक्ट अलग लिखते तो कुछ फर्क नहीं है उसका ज्यादा। अंडरस्टूड? सो दिस इज योर अमोनिया। वो एक लाइन उधर पे ऐड करो प्लीज। आई एम सो सॉरी, आई फॉरगॉट दैट। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे रिएक्शंस ऑफ हेलोअरीन्स। नहीं रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन्स चालू हो गया, आई एम सो सॉरी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN ऑफ हेलोअरीन्स। ये हो गया लिख के बच्चों? मिस वो क्या लिखा है मैं क्या। अमोनिया AMMONIA लिखा अमोनिया। मुझे लगा पूछेगी मिस क्या मैम एक बार मिस ब्रिट्स फिटिंग रिएक्शन लिखा होना। क्या क्या नाम है उसका? क्या नाम है साक्षी? वर्ड्स वर्ड्स, ब्रिज नहीं। वर्ड्स एंड वो फिटिंग। वृत्स बोली, वृत्स क्या हुआ? वृत्स बोला उसने। हाँ अच्छा वृत्स बोला। WUA। अभी खाली हेडिंग लिख के रखो जिनका हो गया है तो मुझे याद दिलाना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोअरीन। हेलो मतलब हेलोजन, अरीन मतलब एरोमेटिक। ओके so we are going to start from this part from next lecture। और आज मैंने जहां तक सिखाया, किधर तक सिखाया? till Würtz-Fittig reaction you have to study everything till the date whatever have been taught to you। there will be a 10 marks oral or written test to complete the reactions। ठीक है, वो भी मार्क्स आपके काउंट होंगे। हाँ मेरे सामने टेस्ट देने का, मैं भी तो देखो तुम लोग कैसा टेस्ट देते हो।
10 मार्क्स का टेस्ट होएगा फॉर 10 मिनट्स। और जो लोग ये नहीं करेंगे ना वो लोग 5 बार पूरा चैप्टर लिखेंगे। हाँ, पूरा चैप्टर, वो भी वर्ड टू वर्ड जो लिखा हुआ है सब। इसलिए बेहतर इसमें ही है कि पढ़ के आओ। हो गया सबका? एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? यू हैव अनदर लेक्चर आल्सो ना, मैथ्स लेक्चर, राइट? हेलो, Yes, ma'am. ओके ओके, ठीक है, चलो मैं 5 मिनट जल्दी छोड़ देती हूँ। जस्ट गो, बी फ्रेश और आराम से बैठो, मैथ्स लिख सको। ओके मैम हाँ, टेस्ट कब होगी? कौन सी टेस्ट? यही जो अभी आपने बताई थी, नेक्स्ट मंडे, एडिशन डेरिवेटिव। मंडे Okay. मंडे। मतलब पूरा नहीं, जहाँ तक सिखाया ना आज यहाँ तक, फिटिक वर्ड्स, फिटिक रिएक्शन तक, पूरा नहीं। And I'm going to give you just to complete the following reaction. 10 reactions I will give you. You have to complete the reactions. 10 marks will be there for that test. ठीक है? क्योंकि ये चैप्टर कैसा है, तुम लोग भूल जाओगे नहीं पढ़ोगे तो। और अगले हफ्ते सब लोग ऐसे कोरे उठ के आएंगे, जैसे केमिस्ट्री कुछ ऐसे हेलोजन जैसा कोई तो चैप्टर था ऐसा। तो ठीक है, तो यू जस्ट स्टार्ट स्टडीइंग। चलो, बाय बाय, Yes, ma'am. Bye, Bye, ma'am. miss. Thank you, miss. Bye. Take- Thank you, ma'am. Thank you. गुड डे। Hi, ma'am. Mama. साक्षी मिल गई।